So let me record it again. चलिए ये जरा इंटरेक्शन में ना थोड़ा मेरा बेहतर होता है सबके लिए। थोड़ी डिसकंटिन्यूटी आती है ना तो उसमें आप थोड़ा दोबारा एक्टिव हो जाते हैं। अदरवाइज एक ही टोन में आप चलते रहें तो फिर आहिस्ता 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 आपके जो हवास है ना वो ठंडे होते जाते हैं और आपको नींद आती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जमाइयाँ लेते हैं आप और फिर आपको आधी बात आवाज आ रही होती है, आधी आवाज नहीं आ रही होती। कर दें सर, आप देख लें जो आप बंद करना चाह रहे हैं। Okay जी, so online participants can listen to my voice. Yes sir. Okay. Yes sir. अच्छा, Tahir was asking a question. Is he still online? Yeah, he's not yet online. Sir, I'm here sir. Okay. तो आपका क्वेश्चन जो है वो मैं उसका जवाब देना चाह रहा था। दिस इज फॉर एवरीबॉडी। क्वेश्चन का ये था जी कि साइटेशंस तो आहिस्ता आहिस्ता, सॉरी फॉर यू, the citations they keep on increasing with the passage of time. The day passes, you are cited again. So if citation increases, so impact factor should change. My answer to this question is that impact factor is computed once a year, and we will see that what is that procedure, because that procedure is very important to know how impact factor is computed. Citations, yes, it keeps on increasing with the passage of time, as shown here on this slide as well. This way humne, I just show you that Google citation. I just open it again. Okay ji, so Tahir, this you're right that this citations of a paper, they will increase, but for computation of impact factor, a day would come once the calculator or the person who or the agency who is computing that, it will freeze those citations and note those values. He or that organization will note down the values, it will compute the impact factor, it will announce the impact factor, and then that impact factor would stay there for 1 year. And that time period, citation may add up. So of course, once after a year passes, the impact factor would change. Right? So Tahir, am I able to answer you? Impact factor changes every year. Sir, ठीक हो गया सर, समझ आ गया. You will be more clarified once we will discuss how impact factor is computed. I have not yet gone into that. Maybe it's not the right time at the moment to discuss that. We'll discuss that. This answer would be further strengthened with more arguments. But for the time being, I hope I clarified your query. ठीक हो गया sir. Okay. So I hope now two things which I have shown you, they are clearer to you. One is researchgate.net. Second is Google Scholar Citation. How they are used for a researcher. So every person who is publishing, he or she will have some accounts on these platforms, right? What is I10 index? Okay, good question. Okay, H index, I've just told you. Okay, यहाँ पे there are certain other things, some parameters which are given. My citations or the author's citations are given. There are 948. Total citations are 948 for my research papers. If they count them all and add them together, it's 948. For last 5 years, it's 657. So that is again a parameter. H index, as I told you, the number of papers cited minimum this number of times, right? So there are 18 research papers which I have published, which have been cited 18 times. So let's scroll it down. You see, first paper is cited 105 times. ठीक है, हसनैन, आपका नाम क्या है? Let me just go through the names again. Sajid, I remember. Amjad, Shiraz, Hasnain. आपका नाम क्या है? कलीम. Okay, Kalimullah. What's your name जी? इकबाल. आपका नाम? नईम. इरफान गुल जी. समर. अनवर. Okay. शाहिद साहब. Okay. मियाँ क्यों कहा आपने? ज्यादा कोई जोर दे गए अपने मियाँ शाहिद कहा.
अच्छा इसलिए, अच्छा अच्छा चलेंगे, ठीक है जी। मियाँ शाहिद शरीफ तो नहीं है कि यहाँ पूरे, पूरा नाम फिर बताए ना। शाहिद हारून, चले ठीक है। शाहिद हामिद, हामिद, ओके, चलो ठीक है। सो नईम, इरफान गुल, समर, समर, नईम, अनवर, अनवर, नईम, हामिद, अनवर एंड शाहिद। ओके, कलीमुल्लाह, शिराज, अमजद, स्नैन एंड इकबाल। ठीक है जी। आपका नाम क्या है? इरम। हेलो, आपकी पहली क्लास है? ठीक है जी। कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं आप ऑनलाइन? कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा जी। सो इरम, एंड व्हाट्स योर नेम? नाजिश, ओके जी। आपका नाम? साजिद, मन्नान, ओके। तलहा, ओके जी। सुहेल, ओके। आप दोनों की पहली क्लास है आज? आई होप all of you will be regular in the classes. Any distance learning student? You are कहाँ से आ रहे हो? तो आओगे हर क्लास में? नहीं आओगे? ट्राई टू बी एज रेगुलर एज पॉसिबल, ठीक है। बट अभी आपने चूंकि ऑनलाइन सेशन देख लिया तो शायद आप फिर ना ही आए, अब आप कहेंगे कि वहीं से थे। बट ये कि इंटरेक्टिव सेशन जरा ज्यादा, उसमें ज्यादा फायदा होता है आपको। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि शायद ऑनलाइन में आपको प्रॉब्लम हो, तो वो मैं सजेस्ट करूंगा कि ऑनलाइन के अलावा भी क्लास विजिट करें। एंड दिस रिक्वेस्ट इज फॉर ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स एज वेल। क्या आपको सेमेस्टर में एटलीस्ट दो एक दफा, कम से कम 2 दफा क्लास में आके फिजिकली फेस टू फेस इंटरेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स टू एटलीस्ट विजिट वंस बिफोर मिड टर्म एग्जाम एंड वंस बिफोर एंड टर्म एग्जाम, ठीक है जी। अरे को मेरी आवाज आ रही है जी ऑनलाइन? जी सर आ रही है। तो मेरी जी आप सर, लोगों आवाज की आ रही है रिक्वेस्ट बिल्कुल। होगी कि आप 2 दफा कम से जी कम सर आ रही है आवाज। कोशिश करके छुट्टी लेके जरूर आए। कोई यस सर। पिंडी इस्लामाबाद घूमने फिरने आ जाए, मरी आ जाए, साथ कपल करें चीजों को, क्लब करें और दोनों काम करें, क्लास में भी आ जाएं और थोड़ा सा मौसम एंजॉय कर लें। अभी तो मौसम बहुत अच्छा हुआ है। और सर कम बहुत से कम, मुश्किल से पेपर देने आती हूँ। हाँ नहीं, लेकिन ये है ना कि थोड़ा बहुत आउटिंग भी होनी चाहिए ना। आप घर में बैठे बैठे बोर नहीं हो गई होंगी? सर बच्चों के स्कूल होते हैं, इस वजह से फिर बच्चों को बहुत ले मसला रहे, फिर होता है। आप ऐसा करें ना कि मैं आपको अच्छी ऑप्शन देता हूँ कि आप सुबह क्लास लें और सीधा यहाँ से निकलें और चले जाएं आप इस्लामाबाद में। कौन सा वो है जी? नहीं, मनाल नहीं यार, ही इज नॉट अ मैन। सामने को तो आप जाएंगे, ही विल बी इंटरेस्टेड टू गो सेंटोरस। हाँ जी, तो आप सेंटोरस जाएं या ये आपका पेरिया टाउन गीगा मॉल है, इधर जाएं। 2-3 प्लाजास प्लान करें तो आप, यू विल बी, वो क्या कहते हैं, आपकी आंखें रोशन होंगी, दिल रोशन होगा, ठीक है जी। और लेकिन सर आप कोशिश करें कि हमें मिड से पहले और फाइनल से पहले ऑनलाइन ही जो करा सके सही तरह करा दे। मेरे जैसे लोगों के लिए पेपर में भी आना बहुत मसला होता है। अच्छा, चले, मैं ये आपके ऊपर मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ। मैंने इनफैक्ट शुरू में ही कहा कि ये बेहतर है कि अगर आप आएंगी, नहीं आएंगी बहुत इशू है, तो आपकी लर्निंग थोड़ी सी डाउन होगी। कुछ चीजें आपको उस तरह से कन्वे नहीं हो पाएंगी जो कि क्लास में लोग आके अचीव करते हैं। तो अगर आप कॉम्प्रोमाइज लर्निंग के साथ चलना चाहती हैं तो दैट इज योर चॉइस। मैंने आपको सिर्फ पॉजिटिव्स दिखाए हैं कि अगर आए तो आपको कुछ फायदे और मिल सकते हैं, ठीक है। बट चॉइस इज योर्स। सर करना तो चाहते हैं, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरे जैसे लोगों को ऑनलाइन भी अगर मिल गया है ना, तो वो भी मैं कहती हूँ बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। अच्छा चले, आप कोई गुलाम है? सर बस फैमिली इश्यूज होते हैं बहुत से, नहीं था आना मसला इंसान होता है। खुद बनाता है, खुद ठीक करता है। तो ये है कि चलें, बहरहाल मैंने आगे ना आपसे, मैं जिस तरह पहले कहा कि अगर आप आ सके तो अच्छा है, आउटिंग कर लें, अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट कर लें या अपने फैमिली में किससे रिक्वेस्ट करें। नहीं आ सकती तो कोई इशू नहीं है, एंजॉय दी ऑनलाइन सेशंस। मैंने इस दफ़ा कोशिश की है कि चीज़ें लाइव सेशंस में कवर की जाएं ताकि आपको ज़्यादा फायदा हो। बिकॉज माई एक्सपीरियंस है कि जब चीज़ें रिकॉर्ड करके सिर्फ दे दी जाए तो लोग लेक्चर देखते नहीं है और आखिरी वक्त तक जो है वो वेट करते रहते हैं, और आखिर में बगैर तैयारी के पेपर में आ जाते हैं। और फिर मोस्टली जो मेरे सब्जेक्ट में ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स हैं, दे हैव नॉट बीन एबल टू सिक्योर गुड ग्रेड्स।
सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट या ऑब्जेक्टिव मैं पहली क्लास में भी मैंने बताया था, मैं रिपीट कर देता हूँ कि इस सब्जेक्ट में हम सब जो आपको मैं ग्रेड करूंगा, इट वुड बी ग्रेडेड बेस्ड ऑन योर रिसर्च प्रपोजल राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन। हमने एक बड़ी क्लियरली क्लास में पहली क्लास में बताया था कि इस कोर्स के 3 हिस्से हैं। वन इज अबाउट रीडिंग, हाउ टू रीड, वेयर टू रीड, फ्रॉम वेयर टू रीड, व्हाट टू रीड, पढ़ना क्या है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, राइट अमजद? And then what to write, where to write, how to write, what could be the common writing mistakes, how to avoid them, and how to present your work. So one is major portion is about reading, second is about writing, and third is overwhelming both of them. That is the presentation part. You will be required to present your work in the class, standing in the class in front of the audience, so that you get confidence to talk by talking and looking into the eyes of your audience. This practice will also be important. So the point which I was saying about online participants, the thing where you will lack or you will lose marks is the presentation part, because you will be doing it online. So of course online there are a lot of things which cannot be done in a right way. So और फिर आपकी effort accordingly कम होती है, आप उतनी मेहनत नहीं करते जब आपको पता होता है कि मैंने खड़ा नहीं होना किसी के सामने, तो आप अकॉर्डिंगली आपकी एफर्ट उतनी कम नजर आती है, तो अकॉर्डिंगली यू ग्रेड लो। सो दैट इज द इशू। और उसी को कवर करने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा था कि ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स अगर आके यहाँ पे प्रेजेंटेशन दे देंगे एक दो, तो वो पॉइंट उनका कैटर हो जाएगा एंड दे विल बी ग्रेडेड वेल। ठीक है? मिस अनु शोएब, योर नेम इज शोइंग Yes, sir. अनु शोएब, योर कंप्लीट Yes, नेम इज sir. व्हाट? Anush Iqbal, sir. Anush Anush Iqbal Pracha. अच्छा, मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे कि काइंडली अपना एक्चुअल नेम यहाँ पे काइंडली अगर रखें, ताकि मैं फिर उसी नाम से आपको बुला सकूं। वो जो घर के जो प्यार से कहने वाले नाम है ना, वो काइंडली ना रखें, बिकॉज आई विल बी। अब एक केके साहब को भी ऑनलाइन हुए, आई डोंट नो व्हाट केके मींस। Excuse me, sir. जी अनुष सर हमें मिड तक जो आपको प्रेजेंट करना होगा, हमें जो हमें रिसर्च प्रपोजल को हमने बनाना होगा। जी जी, आप क्लास अटेंड करती रहे ना, मैं आपको ये चीजें बताऊंगा। आपके क्वेश्चंस ऐसे हैं जो शायद थोड़े से आप अभी परेशान हो रही हैं इसलिए क्वेश्चन कर रही हैं, ये क्वेश्चंस के जवाब आपको साथ साथ मिलते जाएंगे। आई विल टेल यू शॉर्टली इन दिस क्लास कि आपने करना क्या है, मिड में क्या करना है, एंटर में क्या करना है। ठीक है जी। और सर मैं सोशल साइंसेस जो हम अभी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एमफिल कर रही हूँ, ये एमएस, तो सर ये मैं पूछना चाह रही हूँ कि इनके जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पर है सर, इनके लिए कौन से आर्टिकल्स है, मुझे तो आज तक समझ ही नहीं आई इनमें कौन सी क्या रिसर्च करेंगे हम। हाँ, अच्छा, मैं अभी मतलब इसके हम लिए आपको रीड क्या करें, अब रीडिंग देखें तरीका क्या होता है। तरीका ये होता है कि अगर आपने रिसर्च पहले जिंदगी में ना की हो, और ऐसा ही है हमारी क्लास में शायद ही किसी ने पहले रिसर्च या रिसर्च पेपर लिखे हो। ठीक है? आपको मेरी आवाज आ रही है अनुष? काइंडली अगर यस सर आ रही है सर। तो थोड़ा सा बच्चों को अगर दूसरे कमरे में शिफ्ट करके पढ़े तो आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। मेरे साथ बच्चे नहीं है, मैं अकेली बैठी। अच्छा, चलें, गुड, दैट्स गुड। ये कोई और है फिर, ये के साहब है शायद। somebody out of online participant is sitting with the kids। खैर चलें, कोई बात नहीं है, वो चीजें चलती हैं साथ साथ। अच्छा, मैं आपके सवाल का जवाब ये दे रहा था कि देखें बहुत सारे लोग अभी यहाँ पे हमारे पास जिन्होंने कभी रिसर्च नहीं की। हमारे मुल्क में थोड़ा सा ये हमेशा से आप कहें कि इस पे थोड़ा सा लैक ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है? इस पे कॉल आ रही है। अच्छा, तो होता ये है कि देखें रिसर्च करना हमारे लोग शुरू करते हैं मास्टर्स लेवल। हमें शायद बैचलर्स में भी कोई रिसर्च पेपर पढ़ना नहीं सिखाता या बताता नहीं है। नोबडी टेल्स अस। आई एम सॉरी, आई कीप मूविंग बिटवीन उर्दू एंड इंग्लिश। most of the time our students, they study research papers and listen this word research first time in their career once they reach to masters. Before that they do not know anything about this thing, whereas all the advanced countries of the world, if you go into their academic culture, their academic culture is something like this, that they bring in research papers at the earlier stage. I tell you an example, like Israel it got independence along with us. Israel do not allow to a kid to graduate from A levels until or unless he or she writes a research paper.
right? So see the difference. If you start reading and writing from an early stage, there are some instincts which are developed in your personality, and then you transform those qualities into some products. Israel is one of the country which is in the top 10 advanced countries, and they are producing a lot of products. You are using a lot of their products in your life because their generation, their young people, they are doing research from an early age. इसलिए कहा जाता है कि आप अपने बच्चों को किताबें तोहफे में दें, उनको पढ़ने की आदत डालें, सिखाएं उनको कि वो शुरू से पढ़ें. हमारे in our societies this culture is very less. We do not give a book as a gift to our kids. We will take her or him to some restaurant for food. For us, food is more important, and that is why the reasons for our decline. The people, we are very talented people. Let me tell you, Pakistanis, Indians, this region, Indo-Pak, this was having the highest growth rate before Ingres came in here. We were our annual growth rate, या जिसको आप कहते हैं GDP was 50 plus in this region. We were very prosperous people. We are very open-minded. We are multi-dimensional. We sitting here, I'm sure you are thinking two more things in your brain at least. Sajid is thinking about कि यहाँ से मैंने जब जाना है तो मैंने फलां काम करना है, गाड़ी मैंने उसको दी हुई उससे लेनी है, फलां मेरा दोस्त है वो मेरा वेट कर रहा है, ये भी पढ़ रहा होगा. Any other nation can't do this. People only think and do one thing at one time. Pakistanis in this region, including Arab countries, we can think multiple dimensions at one time. This talent is no more in any other nation. And this talent is not explored appropriately, in fact. We have converted it to eating and drinking. तो ये चीजें जब हमारे अंदर आ गई हैं तो we are unable to prosper well. Point was this, that the earlier you start reading and writing, and formal reading writing is research papers, the more you prosper in your products, the more you develop things. हमारा इशू क्या है कि जैसा से भी अनुष ने भी क्वेश्चन किया कि हमें पता ही नहीं कि मैंने क्या रिसर्च करनी है, क्या पढ़ना है, क्योंकि अभी करना शुरू किया है. दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप. सो जितना जल्दी हम अपने अंदर इन चीजों को लेकर आएंगे, अभी भी चले जो हुआ सो हो गया, अब ये वो स्टेज है कि वी शुड स्टार्ट डूइंग इट, राइट. और टू आंसर अनुष, आपका क्वेश्चन जो है वो ये है कि फौरन शायद इसका जवाब आपको नहीं मिलेगा. अब आप रिसर्च पेपर पढ़ना शुरू करेंगी, जो मैं आपको गाइड करूंगा. What would be my guidance? That I would be requesting you to do it at your own, and you will do a lot of mistakes, understandably. And once you will bring those stuff to me, I'll correct that. So by doing this to and fro motion, we will improve on our skills with the passage of time. It is not a one-day task. It's not a one-hour task. It is not a 1 month task. It is a longer duration task. It takes some time. But hopefully by the end of this course, this subject, you will be at much better place than once you started right now. ठीक है अनुष, this is what my answer to your query. तो थोड़ा सा सब्र के साथ चलना है आपने, और थोड़ा सा आपने अपना काम जो है वो फास्ट पेस पे करना है, और उसमें करेक्शंस के लिए तैयार रहना है. तो ये एक adaptive process है. This is an adaptive process. You will keep doing, you will keep learning, you will keep improving, you will do mistakes. And you will come to know ये मैंने, और जब 6 महीने बाद आप दोबारा वापस देखेंगे तो आप कहेंगे यार पता नहीं मैं पहले तो क्या कर रहा था, क्या सोच रहा था, और अब मैं थोड़ा सा अब मुख्तलिफ मेरी थिंकिंग स्टाइल चेंज हो गया, राइट. सो दिस विल हैपन इंशाल्लाह विद टाइम. ओके, सो विद दिस आई जस्ट क्लोज द डिस्कशन विद यू, और हम आगे चलते हैं. मैंने जो आपसे भी डिस्कशंस की थी उसमें मैंने आपको ये कुछ चीजें बताई हैं. ओके, how much time is left in this session? कितना टाइम रह गया जी? हाँ, जूम के सेशन में. अच्छा, once this session closes, we'll have a break in that time. ठीक है, so we can continue.
आई होप यहाँ तक कोई इशू नहीं है। मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया कि जी यहाँ हमने कुछ चीजें देखी नहीं जो आपने शायद पहले नहीं देखी थी। ठीक है अनुष, ये आपने शायद पहले ये चीजें नहीं देखी होंगी जो भी हमने आज डिस्कस की हैं, क्या सही है? यस सर, यस सर। तो इस तरह आपकी चीजों आपकी नॉलेज में ना चीजें ऐड होंगी। तो बी रिसेप्टिव एंड ट्राई टू एब्जॉर्ब न्यू थिंग्स, तो यू विल इम्प्रूव। जी कलीमुल्लाह कोई सवाल कर रहे हैं, आप बताएं। मैं आपका सवाल समझ गया हूँ। देखिए यहाँ पे होगा ये कि आप चूंकि सारे लोग हैं मुख्तलिफ डोमेन्स के, मुख्तलिफ इंटरेस्ट के, किसी एक पेपर को आई कैन नॉट शो एंड डिस्कस इट विद एवरीबडी बिकॉज एवरीबडी हैज गॉट डिफरेंट इंटरेस्ट। व्हाट आई विल डू, थोड़ा सा अगर आप मेरी बात को एब्जॉर्ब करें, यू विल ब्रिंग दोज थिंग्स एंड आई विल ask you to stand here, present it, and I will correct your work instead of anybody's work, which may not be of interest to you. You will get more knowledge, more understanding if you correct your own work, right? So your query is answered, but very specifically for you. सर बेंचमार्क के तौर पे आप हमें कोई चीज ऐसी हाँ, मैं आपके बेंचमार्क का start मतलब भी करने- समझ गया हूँ। What we'll do कि summer, you are the class CR, you will collect some of the research proposals which are the sample research proposals from various domains. Mr. Mohsen will give it to you and collect it and share it with everybody so that you get an idea how research proposal is prepared and written. ठीक है Anuj, that would answer your query as well. Yes sir, yes sir. So what I will request you collect two things. One is to collect the sample template of university proposal. How template means what all is to be written inside. Secondly, collect sample approved research proposal documents. One from project management domain, one from computer science domain or data science domain, and one from electrical engineering domain. That will cover everybody's interest. So now you can apply your research by looking in those approved templates, how to go about how to move forward. Right, Iqbal? So those samples, Mia Shahid, अंदर में लिंक्ड अप है, अंदर में लिंक्ड अप है, आप बात कर रहे हैं डायरेक्ट लिंक्डइन पे है। अच्छा ठीक, समझ नहीं आई, अच्छी बात है, समझ नहीं आई उसको। नहीं अभी भी आप कुछ बात कर रहे हैं ना, किसी के साथ मैसेजिंग कर रहे हैं तो नहीं अभी नहीं है। तो खैर वैसे मैसेज थोड़ी देर बाद कर लीजिएगा आप। सर अभी आपने एक टेम्पलेट का बताया, दूसरा अप्रूव्ड प्रपोजल। जी मैंने ये बताया कि हमारे जो क्लास के सीआर है ना, वो एक अप्रूव्ड रिसर्च सैंपल प्रपोजल जो है वो कलेक्ट करेंगे। आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किए ना, तो आपको वो एक एग्जैक्ट टेम्पलेट मिल जाएगा। किस तरह से किसी और शख्स ने आपकी तरह का काम किया, आप जो आपको करना चाहिए उस तरह की एक चीज आपको नजर आएगी, तो आपको अंदाजा होगा कि मैंने कैसे करना है। ठीक है। अच्छा एक चीज जो मैं आप सबके लिए बताऊं, वो जो आपकी रिक्वायरमेंट भी होगी बाय नेक्स्ट क्लास इज everybody out of you has studied at least 6 courses during the degree program. ऐसे ही है, कुछ 5 पढ़ने हैं शायद, 5 से कम तो कोई नहीं है। So everybody has gone through area breadth. You have seen the courses and expectedly those teachers should have given you some assignments, some research papers to read. Expectedly. There are few teachers who are maybe they are more prone to introduce you to the research papers. Certain teachers, they just spoon feed, they do not give much research papers. But whatever the case is, now you must be at a good place to decide which area is your area of interest. You have studied from 3 to 5 teachers, at least 3 teachers and maybe 5 teachers, maybe 6 teachers, अगर आपने हर एक से अलग-अलग subject पढ़ा। So you must be now सर यही तो मेरा सवाल था कि हमने इतने सब्जेक्ट्स पढ़ लिए हैं, लेकिन हमने आज तक अफसोस है उसको अपनी रिसर्च का जो हमने थीसिस लिखना है कि आप चूंकि ऑनलाइन उसके साथ रिलेट नहीं हुआ। नहीं देखिए वो इशू ही होता है टीचर्स ने बहुत अच्छा पढ़ाया है, ये नहीं है। नो सर, सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखते हैं,
लेकिन जब कहते हैं ना कि आपने किस डोमेन में कहाँ काम करना है उसके ऊपर कुछ लाइंस या कुछ प्रपोजल कोई बात लिख कर लाएं। सबने बहुत अच्छा पढ़ाया, ये नहीं कि हमें किसी ने पढ़ाया ठीक नहीं है, बहुत अच्छा पढ़ाया है, सब बहुत कोऑपरेटिव टीचर, सब ठीक था। लेकिन सर एक वो होता है ना रिलेट करना। जब एक जगह जब मैंने एक मास्टर्स किया है वहाँ पे हमारा एंथ्रोपोलॉजी था, तो सर हमें सूफी श्राइन्स पर हर सब्जेक्ट के अंदर एक एक दो दो आर्टिकल हम अनुज, मैं स्टूडेंट्स ने आपसे लिख रिक्वेस्ट के ये करूंगा कि ये चूंकि आपके पर्सनल कुछ प्रॉब्लम्स है ना, यू कैन डिस्कस इट विद मी इन अ प्राइवेट सेशन, क्योंकि ये बाकियों के प्रॉब्लम्स नहीं है जो आप मुझे भी बता रही हैं। सर तो प्रॉब्लम नहीं बता रही, सिर्फ ये बता रही हूँ कि नहीं अब किया वो हमने काम। मैंने इनफैक्ट थोड़ा आगे भी मूव करना है ना, आपके जो प्रॉब्लम मुझे समझ आ रहे हैं, एटलीस्ट इतना मुझे समझ बूझ अल्लाह ने दी है कि आई कैन अंडरस्टैंड योर इश्यूज आर डिफरेंट। आपके पर्सनल इश्यूज हैं बिकॉज ऑफ योर बैकग्राउंड, कि आपका बैकग्राउंड जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का नहीं है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट हाँ करूंगा कि नहीं है। आप इन क्वेरीज ठीक को है मुझसे सर, अलग से डिस्कस करें, ठीक है सर। ठीक है? बिकॉज जो आपके बाकी कुलीग्स हैं ना, वो आपके सवालों में इंटरेस्टेड नहीं है बिल्कुल भी। आप समझ नहीं मेरी बात? जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? अस्सलाम सर। आर यू ऑनलाइन और गॉन? शी इज गॉन। अस्सलाम सर। जी जी, अनुष इज ऑनलाइन? नहीं है। अच्छा जी, ये के जिनका नाम है, आप काइंडली अगर पूरा नाम अपना लिखें यहाँ पे। सर मेरा नाम कुलसूम है, मैं पूरा नाम लिख देती हूँ। पूरा नाम लिखें ताकि सॉरी सर, मैंने थोड़ी लेट ज्वाइन की है क्लास। काइंडली सर थोड़ा सा अगर जो आपने आज लेक्चर जो भी आज उसके कुछ पॉइंट्स मेन मुझे बता दे, रिपीट करवा दे। मैडम ये लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है ना, तो आप रिकॉर्डिंग काइंडली देखिएगा, अभी यहीं से लिंक हो जाए आप। ओके सर, ठीक थैंक यू सो है, मच। रिकॉर्डिंग आपसे मैं शेयर करूंगा, डोंट वरी। थैंक यू सर। कलसूम खान नाम है पूरा? खातून। कलसूम, अच्छा काइंडली पूरा नाम आप मेंशन करें, ठीक है? ठीक है सर। अच्छा जी, ओके। सो हम आगे चलते हैं। मैंने जो अभी रिक्वेस्ट की है, देखिए कुछ लोगों के प्राइवेट अगर कोई ऐसे अपने ओन नेचर के क्वेश्चंस है ना, तो वो क्वेश्चन सारे लोग शायद इंटरेस्ट नहीं लेते उसमें। तो वो थोड़ा सा आपने कोशिश ये करनी है कि मुझसे आप थ्रू सीआर, आप व्हाट्सएप पे मुझे अलग से अप्रोच करके वो सवाल करें, मुझे कॉल कर लें, वी कैन डिस्कस दैट, ठीक है? या क्लास में आ जाए। देखिए अगेन मैं रिपीट करूंगा, ये लेक्चर रिकॉर्ड तो हो रहा है, मे बी अनुष इसको सुने बाद में। आपके जो बहुत सारी क्वेरीज है ना, और आप जैसे लोगों की जो क्वेरीज हैं, वो इस वजह से भी है कि आप जब डिस्टेंस लर्नर होते हैं तो आप इंटरेक्ट नहीं करते लोगों के साथ आके। आप ये आके जब बात करेंगे ना पहली क्लास में, दूसरी क्लास में, once you will discuss it with your teachers, your personal issues that I'm not trying to link, I'm not able to link my previous things with the current studies, then they will assist you in those things. They will tell you how to manage such things, and maybe they will apply corrections in their teaching. Okay, if you tell me that I'm not giving you any assignment related to research papers, I'll start giving it, because teachers sometimes think that this student already knows all these things, so they may not take that interest. But once you will highlight specifically by meeting face to face with him or her, he or she will give you those tasks, right? So distance learnings के कुछ और issues हैं, अब उनके साथ हमने चलना है, कुछ compromise करना पड़ेगा, करना पड़ता है। उसको improve, how you can improve, if you may visit a day or two, come here, meet the teacher, bring your problems and discuss how to solve it, and we will try to make you comfortable with your issues. Never be shy in class. Talk. The more you talk, the more you interact, the more you will get the clarification. If you keep sitting like a duck, then you'll go out as a duck. Okay? So 10 minutes are left. After 10 minutes, we will have a break. ठीक है, नमाज ब्रेक कर लेंगे। अभी वे जस्ट आगे लेके चलते हैं, मूव फॉरवर्ड। मैं जहाँ पे क्लोज किया था मैंने ये कहा था कि जो सैंपल्स कुछ रिसर्च प्रपोजल्स के हैं, जस्ट टू गिव यू अंडरस्टैंडिंग हाउ रिसर्च प्रपोजल्स आर रिटन, दोज वुड बी शेयर्ड बाय क्लास रिप्रेजेंटेटिव समर। समर, आपका नंबर क्या है काइंडली अगर आप रिपीट कर दें फॉर डीएल स्टूडेंट्स? मैं रिपीट कर देता हूँ। कैन शुड आई राइट? कोई मार्कर वगैरह आपको मैंने कहा था रखा करो। देखिए अगर मियाँ शायद जो है इज स्लीपिंग फॉर लॉन्ग टाइम। अच्छा, आप आ जाए, थैंक यू सर। काइंडली रिपीट योर नंबर।
0332 591812 समर. ओके, सो मैं रिपीट कर देता हूँ नंबर ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स के लिए. Number of CR which you can directly, although I have made a WhatsApp group and I hope everybody is on that group. If anybody is yet not joined that group, you must join, because all the lectures, video lecture links, slides, any announcements would be made on that group. About timing, about plus minus, maybe कुछ भी ऐसी emergency की कोई चीज होती है, I'll share on the group. However, class CR number is 0332 591812 and his name is Samar. So this is for the online participants. Please note it down and try to contact him for anything जो आपको feel होता है. मैंने इनको टास्किंग ये की है पहली कि he will collect the sample research proposal documents and he will share it with you on the WhatsApp group. Right? I'll make you admin. You can share there. Right, जी, any question from online participants? जी Tahir, you have raised hand. सर एक दो रिक्वेस्ट हैं काइंडली. एक तो सर जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको सर अगर हम ओपन कर सकते हैं सो दैट एनीबॉडी कैन आस्क हिज क्वेश्चन, और वही रेलिवेंट क्वेश्चन अगर और भी लोगों का होगा तो हर किसी को अलग अलग से सीआर को जो है ना वो अप्रोच नहीं करना पड़ेगा. इस तरह सीआर को सारे प्राइवेट चैट बॉक्स में अलग अलग से अप्रोच कर रहे होंगे अननोन नंबर से. तो थोड़ा सा मैं पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे कह रहा हूँ कि अगर ग्रुप चैट के लिए ओपन हो तो थोड़ा सा फैसिलिटेट हो जाता है. तो एक तो सर ये अगर वो पॉसिबल, उसमें जो मेरी काउंटर आर्गुमेंट है वो ये है कि आपकी जो क्वेरी है वो मे नॉट बी, जो बाकी 60 लोग हैं उनमें से शायद 2 की हो, लेकिन बाकी 59 की या 58 की नहीं होगी. सो दे विल नॉट बी इंटरेस्टेड. और फिर ये कि जब ग्रुप में बहुत सारे चैट्स आ रहे होते हैं ना, तो जो काम की बात है वो भी मिस हो जाती है. और आई एम श्योर जितने ये 60 लोग यहाँ बैठे हैं ना, इन 60 के कम से कम 60 ग्रुप्स होंगे. और वो जो है ना, जब इतने सारे आपको ग्रुप्स मिलते हैं तो आप उन ग्रुप्स को बिल्कुल ही अवॉइड कर देते हैं. तो आई वुड रिक्वेस्ट के पर्सनल चैट इज गुड, ऑलवेज बेटर. उसमें आपको रिस्पॉन्ड मिलेगा. अपना नाम लिखे ना उसके नीचे कि जी मैं फलां हूँ और मुझे ये क्वेरी दें आप. तो माय रिक्वेस्ट इज दिस. सर ठीक है सर. एग्री जैसे आप I myself do not like WhatsApp groups. It wastes lot of time. Although this is a useful group, but still, अगर कोई किसी का प्रॉब्लम है वो इंडिपेंडेंटली क्वेश्चन करे. आई एम आल्सो पार्ट ऑफ ग्रुप. अगर आपको सीआर रिस्पॉन्ड नहीं करता आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करें, मुझसे पूछें. ठीक हो गया सर. ठीक हो गया सर. यू विल गेट मोर सर पर्सनलाइज्ड रिस्पॉन्स. ग्रुप के ऊपर आपको ना, आप देखेंगे आपके 5 में से 2 मैसेज का कोई जवाब नहीं आएगा. सर ठीक हो गया सर. ठीक हो गया सर. दूसरा सर काइंडली एक इसी से पर्टेनिंग एक और क्वेश्चन था जो आगे बात हो रही थी. अभी हमने सर आपने ऑब्जेक्टिव, फाइनल ऑब्जेक्टिव बताया कि बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स वी ऑल शुड बी एबल टू राइट अ रिसर्च प्रपोजल एंड वी शुड बी एबल टू प्रेजेंट इट टू आवर ऑडियंस. Exactly. अब सर फॉर एग्जांपल आगे इसके बाद जब हमने तो जैसे मैंने अभी थीसिस का कोई भी सब्जेक्ट ऑप्ट नहीं किया, मैंने थीसिस 1 और 2 को बाद में छोड़ा है, और ये सब्जेक्ट मैंने इंटेंशनली पहले ऑप्ट किया ताकि पहले मैं रिसर्च करना तो सीख लूं. तो वो चीज सर हमारे आगे थीसिस 1 और 2 से ऑटोमेटिकली लिंक्ड मतलब होगी अगर हम करना चाहें. फॉर एग्जांपल जो मैं थीसिस अल्टीमेटली करना चाहता हूँ, जो टॉपिक मेरे ज़हन में चल रहा है. आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है. ये बाकी सबके लिए भी है. देखिए, जो आप अभी इस सब्जेक्ट में तैयार करेंगे, मैंने अभी TH1 TH2 की बात नहीं की, वो मैंने आज अभी आफ्टर द ब्रेक बात करनी है कि ये है क्या, और मैं उसको लिंक करूंगा आपको इस सब्जेक्ट के साथ भी. बहरहाल, टू कट द शॉर्ट, योर द आंसर टू योर क्वेरी इज that whatever you do during this course for the research proposal, that could be your TH1. So try to select a topic which in fact is your thesis topic, so that you actually work on that thesis topic during the subject, and then further improve it once you take the TH1 in minimum time, defend it, and go and do your thesis, which is your final thesis, and that is called TH2. And we'll discuss it after the break once we come. ठीक होगा सर. राइट सर. थैंक यू सर. थैंक यू. और कोई क्वेश्चन? सर दैट्स ऑल सर. Okay, so any other question from the online participants? No question. Any question from your side? Who is asking this question?
इकबाल ने पहला क्वेश्चन इम्पैक्ट फैक्टर का किया था, दूसरा जनरल क्या है? माय आंसर इज के इसको हम करेंगे कवर आफ्टर द ब्रेक इफ टाइम परमिट्स, अदरवाइज दिस क्वेश्चन इज फॉर द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, और कोई सवाल? सर आप सही कह रहे हैं, पता चलेगा ना, यही तो अभी आपने आहिस्ता आहिस्ता करना है। अभी आप परेशान है ना, ये परेशानी चाहिए। दिस परेशानी इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स डूइंग अ थीसिस, बिकॉज देखिए थीसिस इज इंडिपेंडेंट टास्किंग, इट्स नॉट स्पून फीडिंग। Thesis is given with a purpose at master's level. It is given with a purpose that students start doing something independently. You are not, your hand is not held by or held by a person who will take you to the on a bridge. No, you will cross the bridge yourself. And during that process, you will come to know what are the issues, what are the problems. याद रखिए, जिंदगी में इंसान सबसे ज्यादा कब सीखता है? जब धक्के खाता है। जब धक्के खाता है, जब तक माँ बाप के साथ होता है कुछ नहीं सीखता। जब माँ बाप धक्के देके घर से निकाल देते हैं कि जाओ भाई अपना काम कर, फिर आपकी लाइफ शुरू होती है, राइट? So this stage at master's level is for the same purpose. You will be told to do at your own. You will go and search and परेशान होंगे, बुरा भला भी कहेंगे, सुपरवाइजर कभी साथ देगा कभी साथ नहीं देगा, कभी आपको समझाएगा कभी नहीं समझाएगा, कभी खुद एक एक्स्ट्रा चीज देखनी पड़ेगी, कभी कोई चीज आपको नहीं समझ आएगी, आप एक जगह से दो जगह से तीन जगह से करेंगे। अब ये जो चीज है, ये जो प्रोसेस है, ये पर्पसफुली, इसमें जो आप कुछ सीखेंगे वो सारी उम्र आपके साथ रहेगा। ठीक है, सो पहला स्टेप इज ऑलवेज परेशानी। यू गेट टू नो यार आई एम in trouble now, what to do, and then your personality will tell you what to do. You will yourself take a second step, and during that step you will do mistakes, and those mistakes will be corrected by your supervisors, by me, by your colleagues, by your teachers. तीसरा स्टेप अच्छा होगा, चौथा उससे अच्छा होगा, आहिस्ता आहिस्ता आपकी करेक्शन लगनी शुरू। तो वो जो आपकी प्रूनिंग कटिंग है, that is part of this thesis process. The first stage to select a thesis topic is to select a research paper. If I just tell you a single word कि आपने भी क्या करना है, तो मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही है रिसर्च टॉपिक डिसाइड करने में, आपने जो कुछ पढ़ा है उससे आपको कुछ नहीं मिला, किसी ने कुछ नहीं समझाया, तो अभी आपकी पहली स्टेज ये बनती है कि आप खुद सोचें कि यार मुझे क्या चीज अच्छी लगती है, और फिर उससे रिलेटेड कीवर्ड्स को जाके जो इफेक्टिव सर्च इंजन्स हैं उन पे सर्च करें, एंड ट्राई टू फिगर आउट वन रिसर्च पेपर विच यू कैन इम्प्लीमेंट, which you can do yourself. ऐसा रिसर्च पेपर जो कि आप समझते हैं कि यार ये रिसर्च पेपर जो है मुझे इसकी कुछ ना कुछ समझ आ रही है और मैं इसको खुद कर सकता हूं एज इट इज, इसके रिजल्ट्स को रिप्रोड्यूस कर सकता हूं। इफ यू फिगर इट आउट, दैट इज द फर्स्ट स्टेप व्हिच यू हैव अकम्प्लिश्ड, राइट? सो ऑल दोज जिनको कुछ नहीं पता क्या करना है, ऑनलाइन एंड और फेस टू फेस, अगर उन्होंने अभी तक कोई टॉपिक डिसाइड नहीं किया, कोई एरिया डिसाइड नहीं किया, तो अब वो एक्सप्लोर करें, ऑनलाइन जाएं, टाइम लगाएं, डिस्कस करें, लोगों से मिलें, और अल्टीमेटली किसी एक रिसर्च टॉपिक के अगेंस्ट रिसर्च पेपर्स फिगर आउट करें, एंड देन क्लोज डाउन योर सर्च टुवर्ड्स